مرکزی سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے ڈائیلاگ کا، گفتگو کا، میرا پیر صاحب کا یہ موقف تھا کہ بھئی اگر اپوزیشن جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی حکومت کے ساتھ اور حکومت بھی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی تو ایسی صورت میں تو اس بات کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نہیں بات کرتے جناب حکومت سے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، تو اس ایسی صورتحال میں یہ سوچنا کہ یہ دونوں بات نہیں کرتے تو چلو آتے لیں، ایسی صورتحال میں تو مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے۔ اس لیے ہم نے ایک تجویز رکھی ہے، اور وہ یہ تجویز ہے کہ ٹریک ٹو ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ وہ ملک جو آپس میں شدید تناؤ کے اندر ہوتے ہیں، وہ جنگی صورتحال کے اندر بھی ان کی ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے عوام، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو باہمی طور پر ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ٹریک ٹو ڈائیلاگ کا آغاز وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپوز ڈائیلاگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ڈائیلاگ جو ہیں ان کے ریزلٹس ایکسپوز ہوا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک ٹریڈیشن ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹریک ٹو ڈائیلاگ شروع کیا جائے، جس کی تفصیلات جو ہے ہم ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور اس کی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ وہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کے ہمیشہ حامی رہے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر حکومت کو متعدد موقعوں پر دعوت بھی دی، لیکن حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ این آر او ہے، اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، یہ والی جو بات ہے، یہ گفتگو ہو نہ ہو، یہ تو ہم روز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ماضی میں انہوں نے اس سلسلے میں بات کی ہے، ڈائیلاگ کے سلسلے میں جب وہ آئے تھے رہا ہو کے، وہ بھی آپ سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں کی تمام سوچنے والی قیادتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ڈائیلاگ چاہتی ہیں۔ اس کے لیے اس وقت جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت اور ایک گرد اڑی ہوئی ہے، اس کے اندر خواہش کے باوجود ہم پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں، اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں، ہم ہر سوچنے والے سے ملتے ہیں، ہر سوچنے والا چاہتا ہے کہ یہ ٹکراؤ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، خواہ وہ اپوزیشن کا ہو، خواہ وہ اس کا ہو۔ اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا ایٹماسفیئر، اور میں یہ آپ کو بالکل واضح بات کروں کہ ہم یہاں کسی ایک انتہائی عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ پیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم کسی کے خلاف نہیں یہاں آئے، ہم کسی کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے یہاں نہیں آئے، اور پوزیشن ہو یا حکومت ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کسی طرح سے واپس پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں اپنی گفتگو شروع کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ استعفوں کی آگ لگنے سے پہلے پاکستان کی سیاست کے اندر، دیکھیں، اس ٹکراؤ میں کوئی نہیں جیتے گا، اس ٹکراؤ میں لڑنے والا، جیتنے والا بھی ہارے گا اور ہارنے والا بھی۔ جب آپ ڈائیلاگ کی بات آپ نے کی ہے، شہباز صاحب نے کہا کہ میں جیل میں بند ہوں، ڈائیلاگ کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کوئی طریقہ کار کے وضع کریں گے؟ ہاں، دیکھیں، ہم نے اس ڈیڈلاک کے لیے جو ٹریک ٹو ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اس کی تمام ورکنگز ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے اوپر ہم خاموشی سے کام کریں گے، اور یہ ملاقات بھی اسی خاموش کام کا ایک حصہ تھا کہ ہم ڈائیلاگ کو، دیکھیں، وہ جی میز پہ بیٹھ رہے اور پھر جی ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جی میڈیا کے سامنے اکٹھا کر کے ڈائیلاگ شروع کر دیا، کچھ نہیں ہونا۔ بات تو اس وقت یہ کہ اب آپ نے کسی نتیجے تک جانا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بیک ٹو پالیٹکس، بیک ٹو جمہوریت۔ دیکھیں، پارلیمنٹ میں جو راستے موجود ہیں ان کو اپوزیشن استعمال کر سکتی ہے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہے۔ دورانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو میاں شہباز شریف ڈائیلاگ کی بات ہے، تو کیا جو مسلم لیگ نون استعفے دے رہی ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں دے رہی؟ دیکھیں، شہباز صاحب نے اس وقت جو بات کی ہے، میں بالکل وضاحت سے بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس وقت اپوزیشن کا اتحاد ہے اور وہ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ تو جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ پابند ہے،
मियां साहब भी पाबंद है, शहबाज साहब भी पाबंद है, सारे पाबंद है। इवन जो पीडीएम फैसला करेगी तमाम उसमें मौजूद पार्टियां उसकी पाबंद है, फर्द भी उसके पाबंद है। लेकिन हम उस पाबंदी और उसकी बात, कानूनी बात नहीं कर रहे हैं, हम असूल की बात कर रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि आपने बात की कि इस्तीफे नहीं होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, तो जो बयानिया नवाज शरीफ का है, जो मरियम नवाज का है, सड़कों के ऊपर आके जिस तरह से जिस लहजे में लोगों के नाम लेके, इदारों के नाम लेके वो बात करी है, क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई कि उस तरह का जो रवैया है या वो जो बयानी है उससे थोड़ा सा पीछे हटा जाए? देखें, बात यह है कि मैं सिर्फ करूंगा जिससे बात आगे बढ़ सके। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जिससे किसी किस्म की कंट्रोवर्सी जो है वो आगे बढ़े। मौलाना फजल रहमान है, क्या आप उनके पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। मैं तो मौलाना से मैं देखें, मैं मीडिया में ज्यादा नहीं आता, आपको पता ही है, लेकिन मैं बेशुमार दफा फजल रहमान साहब से मिलता हूँ, ठीक है ना जी। उनसे मेरा मुसलसल राब्ता है। इवन मियाँ साहब से भी अभी वो आए थे, दुआ के लिए हम गए थे, उसके बाद भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैं मुल्क के तमाम क़यादत के साथ मैं पर्सनल राब्ते में भी हूं और मैं समझता हूं कि मेरा मसला नहीं है, मैं किसी लीडरी के चक्कर में नहीं हूं और मैं किसी, आज आप आए हुए हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, वरना शायद हम चुप करके घर जाके काम शुरू कर देंगे। क्या आपको हुकूमत की तरफ से जो मुलाकात है, आप चूंकि हुकूमत के जो है इत्तेहादी भी हैं, एक तो ये आपको मुलाकात महंगी तो नहीं होगी, अब कैसी सूरत होती है, तो आपको प्रोग्राम है कि ये? देखें जी, बात यह है कि मेरी पार्टी का और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी का इस वक्त ना हुकूमत इश्यू है और ना कोई मफाद इश्यू है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इस टकराव को किसी भी कीमत पर खत्म करने में है। पाकिस्तान का मफाद इस वक्त यकजहती में है। ऑपोजिशन की यकजहती जो है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है और हुकूमत यकजहती है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है। लीग जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयाने को और उनकी फिक्र को तस्लीम करते हुए जम हो सकती है? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये कन्फिडेंट ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगी सोच को आपस में इकट्ठा होके पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अच्छा दुरानी साहब, आप पाकिस्तान की बात करें, एक मिनट आपने जो बात की है अभी, आपको बता दिया, अवाम ये जानना चाह रही है क्या आपको उन हल्कों की तरफ से भी मैंडेट है या सिर्फ ये पीर साहब बगाड़ा की अपनी सोच है, हुक्मरान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेना चाह रहे हैं? देखें जी, जहां तक सवाल है एस्टेब्लिशमेंट का, जहां तक सवाल है हुक्मरानों का, जो बात मैं कह रहा हूं वो एस्टेब्लिशमेंट के भी हक में है, हुक्मरानों के भी हक में है और वो अपोजिशन के भी हक में है। देखिए, इस वक्त अगर अपोजिशन को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर बिल्कुल किनारे लगाया जाता है तो वो मुल्क के मफाद में नहीं है। अगर इस वक्त इस टकराव के नतीजे में आग लगती है तो उसमें सब जलेंगे। दुरानी साहब, 2 साल का अरसा गुजर चुका है, जो अपोजिशन का इरादा है कि हुकूमत जो सी है वो अवाम के म्यार पे पूरी नहीं उतर रही, नंबर 1। नंबर 2 सर, माइनस मरियम फार्मूला, मैं बार बार वो रिपीट करूंगा क्योंकि आपस में इनके जो फैमिली के इख्तलाफात हैं, अगर ये शहबाज शरीफ साहब अंदर है तो क्या मरियम को आप बीबी को इस पे रजामंद नहीं कर सकते? आप उनसे मुलाकात अगर करते इस हवाले से। देखें, बात यह है कि शहबाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, ठीक है ना जी, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में बात जाए। वो पार्लियामेंट में बैठे हुए आधी पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं। आपको फिर इनको छोड़ना पड़ेगा क्या? इस पे मैं तो ये समझता हूं कि इनको छोड़ना चाहिए। ठीक है ना जी, मतलब ये है कि अगर आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर देंगे तो डायलॉग के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। बाकी लोग अगर बाहर है तो अच्छा है, बाहर है, जलसे कोई करते हैं उसका बुनियादी हक है कि वो जलसा करे, इख्तिलाफ करते हैं तो उसका भी बुनियादी हुकूमत से, लिहाजा वो अपोजिशन का सहारा लेकर अपोजिशन की सफों में आना चाहते हैं। ये ऐसी कोई इतराज? देखें जी, जीडीए का जहां तक ताल्लुक है या फंक्शन लीग का ताल्लुक है, मैंने तो बताया हम तो सूफी किस्म के लोग हैं, ये सूफियों की धरती है, यहाँ पे हम आज ही से आए हैं, हम किसी से लड़ने नहीं आए। और मैं सालिस ऐसा सालिस के तौर पे हूँ जो
मैं हमेशा झुक के खड़ा होता हूँ, मैं हमेशा अदब से बात करता हूँ। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन का हर फर्द काबिल एहतराम है, पार्लियामेंट का हर मेंबर जो है वो काबिल एहतराम है, मेरे से इख्तिलाफ करने वाला भी काबिल एहतराम है और हमारे साथ पीडीएम के फैसले पीडीएम के फैसले के तहत क्या मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर भी हैं और उनके साहबजादे पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, क्या वो भी रिजाइन करेंगे पार्टी फैसले के मुताबिक? देखें जी, जहां तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, ये बिल्कुल हमें सब क्लियर होना चाहिए कि हर फर्द को अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद होना चाहिए। मेरे से अगर शहबाज साहब पूछेंगे, मैं उन्हें यही कहूंगा कि आपको अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन पार्टी को क्या करना चाहिए उसके बारे में मेरी एक राय है कि टकराव नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो है वो मुल्क को नुकसान को रोक, देखें दुश्मन हमारा इस वक्त पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पूरी कुव्वत से काम कर रहा है। हमें ऐसी सिचुएशन में तमाम उसमें हुकूमत है या अपोजिशन, एक ही उसकी। और जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं जेलों में बंद करके नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए सिचुएशन में। मैं ये समझता हूं कि जेलों में बंद करके तहरीकों को नहीं रोका जा सकता। ठीक है ना जी, आपने अगर तो शहबाज शरीफ को रिहा होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन से मुतल्लिक हर फर्द को और बिलखुसूस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो अपोजिशन के रहनुमा है उनको ना सिर्फ आजाद होना चाहिए बल्कि उनको आजाद करके इस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये अदालतों में से भी होता है और अदालतों से उसके अंदर एक मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं समझता हूं कि अपोजिशन को, हुकूमत को और इस मुल्क की अदलिया को, बल्कि देखिए ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे अदलिया, इंतजामिया और इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट से लेके हुकूमत और अपोजिशन सबको मिलके एक किरदार अदा करना चाहिए कि वो इस मुल्क के अंदर बैक टू नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस इस मुल्क को ला सके। नॉर्मल प्रोसेस में सब लोग हटे हैं। देखिए आज तक क्या मिसालें जो मतलब नए तरीके से साइन होगा, इंतकामी कार्रवाइयां जारी है, उस हालात में आप कैसे देखते हैं? हाँ देखें जी, इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो किसी भी रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और मैं एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो अमन की दाई है, जिसके बड़ों ने इस मुल्क के लिए शहादतें उठाई हुई हैं। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैं बस्ता पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क की सियासी क़यादत और पूरे मुल्क के अवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि अब हमने इस आग को बुझाना है और इस आग को बुझा के हमने जुल्म को भी खत्म करना है और इंसाफ के रास्ते भी बनाने हैं। जी देखें जी, मुझे तो आप जाती उम्र क्या, मुझे आप जहां भी कहेंगे मैं जाऊंगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, देखिए